Hello students, so today we are going to be doing CMI 2024 PYQ, and as you know this is our second upload in the 10-day strategy that we discussed. So I guess yes, let's jump right in. So for some reason CMI starts the numbering of the question number 1 from the number 2. I like for technical reasons, but yeah, whatever. So yeah, let's start. So informations for questions number 2 and 3. It says a test developed to detect COVID gives the correct diagnosis for 99% of people with COVID. So if you do have COVID, you get the correct diagnosis 99% of the times. And also it gives the correct diagnosis for 99% of the people without COVID. Okay? So if you do not have COVID, again you're getting the correct diagnosis 99% of the times. Right? And the probability of you having COVID is basically 1 upon 1000 because that's the fraction given here. In a city, 1 upon 1000 of the population has COVID. So your probability of having COVID in this city is, now what is the probability? What is the probability that a randomly selected person tests positive? Right, we assume in our random selection that every person is obviously equally likely to be selected, and the next question says suppose that a randomly selected person does test positive. So what is the probability that they actually had COVID in the first place? Right, so that's the first two questions, and I guess let's jump right in. So we defined two events. Let C be the event that the person has COVID, and let T be the event that the test is positive. So what we are asked in question number 1, we are asked for the probability of event T, right? And we hit 80% test positive. So we are going to compute P of T. Now how are we going to compute P of T? We know that P of T can actually be broken down into two parts. First, so event that the test is positive, so P of T. So we know that P of T can be written as 1 upon 1000 into 0.99. That's the first part. And why is it the case? Because we know that the probability of having a person, the probability of a person having COVID, is 1 upon 1000, and the test result giving positive for that person is 99%. So that's the first part of your probability, that a person actually has COVID and you get the positive result. The second part of this probability is that the person you're picking from the population does not have COVID, which is the probability of which is 999 over 1000, right? And even if it doesn't have COVID, you can get test result positive with a probability of 1%, which is exactly what's happening here. So you add that up, your answer would come out to be approximately 1%. So the probability of the test being positive is 1%. Right, now question number 2 asks for P of C given T, right? Because we are already given that the test result came out to be positive, we want the probability that a person actually has COVID. So we want P of C given T. Right, and we know that the probability of P of C given T is P of C and P of C intersection T. I mean, they're written and, you could just say P of C intersection T, whatever you want to, notation you want to use. So P of C and T over P of T. We know what P of T is. Now what is P of C and T? P of C and T means that a person actually has COVID and the test result came out to be positive. Right, so we want the probability of that. Now we know that that is just going to be equal to 1 upon 1000 into 0.99, because I mean, that's exactly what we use to calculate the first part of this probability. So this is a fairly easy problem. So after you have that, your answer is going to come out to be around 9%, and yeah, I guess that's about it. Okay, we know that P of X, so this is the only information we are given for questions number 4, 5, 6. So we know that P of X is equals to x to the power 6 plus 10 into x to the power 5 plus, I mean, this is the polynomial basically given to us. Now we need to find the remainder when P of X is divided by x plus 1. Now this is, let's just first use the Euclidean division method to calculate this form. So we know that P of X is equals to Q of X into x plus 1 plus R. Now since x plus 1 is a linear polynomial, we know that R is going to be a constant, and R, if you calculate P of minus 1, that's going to come out to be equal to R. Hence the remainder is nothing but P of minus 1, which you can calculate very easily. So fourth question is fairly easy again. Now let Z1 से लेकर Z6 be the 6 complex roots of this polynomial, and then you need to evaluate
summation of zi squared. Now again you can write this summation as what? You can write this summation as z1 plus z2 plus all the way up to z6 whole squared minus 2 times z1, z2, z1, z3, basically the product of the pairwise sums, right? And you know by Vieta's formula, you know this and you know this, so you can just calculate the summation of zi squared, which you can again look here as well. See, p of minus 1 is 4, and this is a summation of zi squared minus the 2 times the pairwise product of all the zi's, and that's just, just basic Vieta's formula usage, nothing too fancy going on here. Now what you need to do is you need to find an integer n with the least possible absolute value such that p of x has a real root between n and n plus 1. Acha, so you want to find an integer n such that p of x has a real root between n and n plus 1. Write two numbers separated by a comma, value of n, the number of the theorem that justifies it. Okay, so there's some extra part to this. So basically, we are given this as well, that when you do find the number, you also need to write the number of the theorem that justifies your answer for the number you got in question number 6. For example, if you think n equals 5 because of the factor theorem, then you type 5, 1 as your answer with no space, full stop or any number. So what theorem you use to receive that number, and also the number itself, right? So let's see. So what we do is we calculate p of 0 and p of 1. So when you calculate p of 0, it's negative, and when you calculate p of 1, it's positive, right? So obviously, so your answer is basically nothing but 0 comma intermediate value theorem का number क्या था यहाँ पर? It was 3. So your answer is going to be 0 comma 3, and obviously you cannot have an integer with an absolute value less than 0, right? So obviously 0 is going to be your answer here for the absolute value wala part, right? So p of 0 is minus 1, p of 1 is 0, so obviously there's a root between 0 and 1. So, and what did we use here? The intermediate value theorem, because we know that the polynomial is a continuous function. So obviously if you are negatives at 0, positive at 1, you have to cross p of something equals 0 between, and that's exactly what intermediate value theorem does. So I guess that solves your question number 6 or 5 in this case. I mean, the numbering is a bit weird because in the solution sheet they are using one se numbering, and in the question sheet they are using the numbering starting from 2. Now information for questions 7 and 8. So first we have two mighty frogs jump once per unit time on the number line as described in the question. Alright, so the first frog is at x equals 2 to the power I at time t equals I. Okay, so basically it takes jumps in the power of 2. So first it is at 1, then it goes to 2, then it goes to 4, right? So then it goes to 8. So that's how it goes, the first frog. How many numbers of the form 7n plus 1 does the frog visit? The first frog is at x equals 2 to the power I. Okay, the two mighty frogs jumps once per unit time. Okay, so from time t equals 0 to time t equals 99, both endpoints included. Alright, so basically what we are actually seeking here is nothing but how many numbers of the form 2 to the power I, between where I ranges from 0 to 99, can have the form 7n plus 1. So basically what you're looking for here is, you're looking for numbers of the form 2 to the power I that are congruent to 1 mod 7. And I here basically is restricted in this range. So this question is actually very easy. It's just, उन्होंने थोड़ा fancy तरीके से बोला कि frog jump कर रहा है, पहले 1 से 2 पे जा रहा है, फिर 2 से 4 पे जा रहा है, फिर 4 से 8 पे जा रहा है. But all you're looking for is what numbers of the form 2 to the power I can be congruent to 1 mod 7 if I is limited in this range 0 to 99. So सबसे पहले obviously I equals 0 works, then I equals 3 works. So I equals 6 then works, because, and why is it that, and see, it's very easy to see that, देखो, the thing is 2 to the power I will always be congruent to 2 to the power I plus 3 mod 7. Why? Because 2 to the power I plus 3 is equal to 2 to the power I into 8. Right, 2 to the power I plus 3 can be written as 2 to the power I into 8.
And what is that? What is that? 2 to the power I into 8. And 8 is congruent to 1 mod 7. Right? So that is just gonna go away. Right? So that is why 2 to the power I is always congruent to 2 to the power I plus 3 mod 7. And that tells you everything about the question, because we know if 2 to the power I is congruent to 2 to the power 3 mod 7, then we only need to calculate 2 to the power I for 0, 1, 2, because for all the rest, we can just use the periodicity of basically the periodicity of this thing that we just did. So at I equals 0, we have 1, which works. At I equals 1, we have a problem because it's congruent to 2 mod 2. And at I equals 2, it's congruent to 4 mod 7. Right? So obviously I equals 0 is the only solution between 0 and 2. But since we are looking at till 99, we just need to keep adding 3 till we reach 99. So how many numbers are there? There are basically 99 minus 0 over 3. I think there are 33 numbers. 34 numbers. So the answer is 34. Let's see. The second frog starts at x equals 0 and jumps at I plus 1 steps to the right just after t equals I. So that at time 0, 1, 2, 3, this frog is at positions. So at time equals 0, it is at 0. At time equals 1, it's going to be 1 step. At time equals 2, there's going to be 2 steps. At time, okay, so you get the idea. At time 0, it's 0 steps. At times 1, it takes 1 steps in the right direction. So see, it's like this, right? At time 0, obviously, it's at 0. At time 1, so whatever, if you're at time step I, you're going to take I steps forward from the previous direction, from the previous point. So at time 1, it takes 1 step from the previous point. Now at time 2, you're gonna be taking 2 steps from the previous point. So basically the jump is going to be 2 steps. So it's going to be at 3. Similarly at time 3, you're gonna be taking 3 steps from the previous point. So 3 steps, and hence at 6 here you are. And similarly you can just keep going. At time 4, we reach 10. So you get the idea, right? So how many numbers of the form 7 and plus 1 now is it going to hit? So basically nothing. It's this question that ये frog को number line पे जो बोलने का तरीका है, it's just a fancy way of saying that you have a sequence of numbers and what numbers of that sequence are congruent to 1 mod 7. So सबसे पहले मेरे को 2 की पावर का sequence मिला था, अब मुझे ये sequence मिला है 0, 1, 3, 6. Now अगर इस sequence का actually general term निकालना बहुत easy है. So if you want, जैसे देखो 0 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है. Right, so we know that at time t equals 0, we are at 0. At time t equals 1, we are at 1. So how can we find a general term of the sequence? It's actually a very easy question again. If you look at the sequence, right, 0, 1, 3, 6, 10, and you basically subtract consecutive numbers from each other. So you इनका difference 1, इनका difference 2, इनका difference 3, इनका difference 4. So you can see that that subtraction of the consecutive terms forms an AP. The subtraction of the consecutive terms forms an AP. And if you guys know about this, it's basically, I don't exactly remember the term, but it was something like it's a second order AP. Right? So the first order AP is something that's just an AP. Second order AP is something that if you take the numbers of the sequence and take the differences of each of the consecutive terms, right? So if you have a sequence A1, A2, A3, A4 all the way up to infinity, and you take A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3, then they form an AP. That's a second order AP. Then there's third order AP. Yeah, you get the idea कि third order AP क्या होगा. पहले sequence के consecutive terms का subtraction, वो एक नया सीक्वेंस बना, फिर इनका मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी होगा. सो यू गेट द आइडिया कि बेसिकली ये nth ऑर्डर एपी क्या होता है. सो इफ यू, एंड आई थिंक यू गाइज मस्ट हैव रेड अबाउट दिस बिकॉज ऑब्वियसली वी आर नियरिंग द एंड ऑफ सीएमए प्रिपरेशन, तो ये तो तुम्हें पता ही होगा. सो अगेन दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर एपी, sorry, second order AP. Sorry, it's a second order AP, right? So the general term of this is actually very easy to find, right? Because I mean, I won't delve into the details of how to find a general term here. We can just look here. इस sequence का general term अगर find करना है ना, let's just find a general term, okay? Let's just do it. So we know that consecutive terms का difference. So we know that if I call this sequence A1, A2, A3,
a4 dot dot dot, and I know that an plus 1 minus an is going to be equal to n, right? So, and I know that this happens till a1 minus a0, a2 minus a1 is just, a2 minus a1 is just 1. So that implies that an plus 1 minus a1, now a1 we already know is equal to 0, so I can just not consider this. an plus 1 is actually equal to 1 से लेकर n तक का sum. So an plus 1 is n into n plus 1 divided by 2, which implies that an is equals to n into n minus 1 divided by 2. So you have your general term. Okay, you have your general term that an is actually equal to n into n minus 1 divided by 2, and you can verify it very easily here. राइट, सो an की मेरे पास वैल्यू आ गई. अब मुझे निकालना है कि n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू अगर मैं 0 से लेकर 99 तक वेरी करूंगा. सो सिंस इट वॉज a0, you actually have that an is equals to n into n plus 1 divided by 2. Yeah, so basically an is n into n plus 1 divided by 2. राइट, सो नाउ वी वांट, अगर मैं 0 से लेकर 99 तक को n को वेरी करूंगा, मैंने यहाँ पर n लिया है, उन्होंने t लिया है, डजंट रियली मेक अ डिफरेंस. अगर मैं t को 0 से लेकर 99 तक या n को 0 से लेकर 99 तक वेरी करूंगा तो मेरे पास ये n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू का मुझे बेसिकली मॉड्यूलस 7 मुझे इसको स्टडी करना है. राइट, आई नीड टू स्टडी दिस मॉड्यूलस 7. राइट, सो इज दिस गोना बी पीरियोडिक? नाउ ऑब्वियसली इफ यू थिंक अबाउट इट, n into n plus 1 divided by 2 is going to be congruent to n plus 7 times n plus 6 divided by 2. Wait, अगर मैं n plus 7 को लूँ तो I'm claiming कि this is going to be congruent to n into n minus 1 divided by 2. But would my claim be right? So I have a feeling this is going to be true because I mean यहाँ पर n प्लस 7 करेंगे तो ऑब्वियसली आई मीन थिंक अबाउट इट ना, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा n प्लस 7 इंटू एन प्लस 6 माइनस n इंटू एन माइनस 1, तो n स्क्वायर कट हो जाएगा 7n प्लस, हाँ सी व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू थिंग्स, राइट, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू टर्म्स, जब उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वहाँ 13n है और यहाँ एक माइनस n है, तो क्योंकि माइनस और माइनस n हो जाएगा पॉजिटिव n, तो 14n आ जाएगा यहाँ पर और वहाँ 42 है. इसको तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी 7n प्लस 21, which is obviously going to be congruent to 0. So basically this sequence is periodic with period 7. तुम इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, जब तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको और इसको तो तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, तो तुम्हारे पास बेसिकली एक नंबर आएगा जो 0 होगा 7 के कॉन्ग्रुएंट. Like it's basically 0 mod 7. So obviously these two things are the same mod 7, and hence we have that this sequence of numbers n into n plus 1 divided by 2 is basically periodic with period 7. So let's calculate the first 7 terms, देखते हैं कि उनमें क्या क्या मॉडुलस आ रहे हैं और उसके बाद तो हम we can just transpire it, right? So let's see. So yeah, let's just write the modulus of the first few terms. So it's 0, 1, 3, 6. Now 10 is obviously congruent. So 0, 1, 3, 6. Now 10 क्या होगा? 3 हो जाएगा. And at what term we are? So सबसे पहले we are at 0th term. So periodic period 7 के साथ है ना, अभी हमने 5 टर्म लिख लिए हैं. ठीक है, 10 के बाद क्या आएगा? 10 के बाद it will be 15, right? No, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15. 15 is congruent to 8, which is congruent to 1 mod 7, right? And 15 के बाद आएगा 21. 21 is again congruent to 0 mod 7. Now we have written 7 terms. तो मुझे पता है इसके बाद तो ये रिपीट ही होगा, right? तो इसके बाद we know that this is just going to repeat itself as we keep going on. तो मुझे पता है कि पहले 7 नंबर्स में मेरे को 2 बार 1 मिल गया. 0 से लेकर, अगर ये टाइम स्टेप 0 है तो मुझे पता है ये टाइम स्टेप 6 है. So this is time step 0, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So in the first 6 time steps, we are getting 1, 2 times. Right? अब 99 तक मेरे को जाना है, तो पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 6 है पहले, तो फिर इसके बाद आएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12. Right? So exactly, you see, हमें basically 99 से पहले 99 के क्लोजेस्ट कौन सा 6 का मल्टीपल है? It will be 96. So we know that obviously 96 divided by 6 is 16.
तो 16 एंड हर एक उस ब्लॉक में मुझे पता है कि मेरे को 2 बार 1 मिल रहा है, तो 16 इंटू 2 32 टाइम्स आएगा, ठीक है। अब 96 तक मैंने किया था, 96 के बाद मुझे पता है 97, 98, 99 उसमें एक और बार 1 आएगा, राइट। 97, 98, 99 में मुझे पता है कि एक और बार 1 आ जाएगा, एंड 6 इज इंडीड द क्लोजेस्ट मल्टीपल टू 99, राइट, या आई थिंक इट इज, या तो 32, ये ब्लॉक मुझे पता है 16 टाइम्स रिपीट होगा 99 तक पूरा का पूरा, और इस ब्लॉक का आधा एक बार और आ जाएगा, तो देयर आर 16 इंटू 2 32 प्लस 1, हमें 7 से डिवाइड करना है बिकॉज देयर आर 7 टर्म्स हियर। तो अगर तुम 99 को 7 से डिवाइड करोगे एंड यू टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट्स क्लोजेस्ट टू, एंड आई मीन इफ यू डिवाइड 99 by 7, टेक द क्लोजेस्ट इंटीजर टू दैट्स स्मॉलर देन इट, it's going to be obviously 14. Am I right? Yes, 14. So we know that this block is going to repeat itself 14 times. Alright, so सबसे पहले so this block is going to repeat itself 14 times. So that is going to give me 14 into 2, 28 occurrences of 1 at least. तो मुझे at least 28 occurrences of 1 तो मिल रही हैं. Now after I reach, जो मैं लास्ट नंबर रीच कर सकता हूँ इस ब्लॉक के रेपिटेशन से, वो कौन सा है? इट्स 6 + 6 हो गया प्लस 7 इंटू 13, 91. सो द लास्ट, जब मैं इस ब्लॉक को रिपीट करता जाऊँगा तो जो लास्ट नंबर जो मैं हिट करूँगा, जो 99 से छोटा होगा, ऑब्वियसली अगर मैं हर एक ब्लॉक का एंडिंग नंबर देखूं, मुझे पता है पहले 6 है, फिर जो दूसरे ब्लॉक का एंडिंग नंबर है वो 13 है, तीसरे ब्लॉक का एंडिंग नंबर 20 है, तो ऑब्वियसली इफ यू कीप रिपीटिंग द पैटर्न, जो लास्ट ब्लॉक का एंडिंग नंबर होगा वो होगा 97, राइट, 97. तो मेरा 2 और नंबर बचते हैं, 98 और 99, और 98 और 99 ऑब्वियसली इस फॉर्म में आएंगे, तो मुझे पता है कि मुझे एक और बार 1 मिल जाएगा, तो 28 + 1 29 occurrences. Alright, so हमने पहले भी सही लॉजिक लगाया था, बट हमने 6 की जगह 7 यूज कर लिया था, but now we are actually using 7, which is the correct number to use. Okay, so the answer is 29, right? Okay, perfect. Now let O be the origin, P be the point 19, 5, 2024, and Q be the point X, Y, Z. And these are 3 points in the 3-dimensional space where Q is obviously the unknown point, right? Obviously the vector OP is going to be this thing, 19 I hat plus 5 j hat plus 2024 k hat, and the unknown vector V is obviously OQ arrow is obviously equal to xi hat plus yj hat plus zk hat. For each of the sets below, choose the correct option describing it and enter the number of that option. Achha. Okay, and example, if you think a given set is a line, enter 3 as your answer with no full stop or punctuation. So first we are looking for the set of points Q such that U dot V is 2024. Now what is U dot V? सबसे पहले तो U dot V को कंप्यूट कर लेते हैं. देखो U dot V की बात हर जगह हो रही है, U dot V की बात हर जगह हो रही है, तो U dot V को अगर मैं कंप्यूट करूँ तो वो क्या है? 19x plus 5y plus 2024z, and we want, in the first part we want it to be equal to 2024. So obviously this is a plane. ये तो I'm pretty sure that you all know it's a plane parallel to you or a plane perpendicular to you. So it's a plane. I think this is a plane obviously. Wait, ये normal होता है ना? हाँ. So it's a plane perpendicular to you, right? Obviously it's a plane perpendicular to you. Normal of the plane होता है ना? हाँ, yeah, it's a plane perpendicular to you. Exactly. I mean because जो ये coefficients हैं, अगर मैं इस plane को plane की तरह treat करूँ, तो I know that these coefficients in we know, like, it's a standard form of the plane, that the coefficients, if you take it like these, 19, 5, 2024, which is just our point P, then this vector, this vector here, 19, 5, 2024, this position vector is nothing but a normal to the plane in the standard form of the plane. So that is absolutely easy here.
Right, and now your second part is what is u? What if u comma v is kept to be equal to root of v dot v? U dot v is minus 2024 times square root of v dot v. All right, so let's just skip question 9 and for now, and let's go to question number 10. I'll get back to question number 9. Okay. Now question number 10 is obviously very easy again, because see, like if you look at this question, what does it say? It says minus 2024, sorry, plus 2024 here only, times v dot v, and this is nothing, this is what, u dot v is equal to this. Now u dot v ka equation we know, so that is equal to 19x plus 5y plus 2024z equals to 2024 times x squared plus y squared plus z squared. And if you, I mean, this is nothing but an equation of a sphere, because obviously when you rearrange the terms and add the relevant constants, you're going to get something like a, yeah, obviously it's an equation of a circle only, right? Sorry, a sphere only, right? Because you can just take all of these in the left hand side, add the relevant constants. So you will get an equation of the form x minus a squared plus y minus b squared plus z minus c squared equals r squared. And that is nothing but an equation of a sphere. Right, so question number 8 and 10 are pretty easy. We'll get back to question number 9 as I said before. All right, so now we are saying an integer. Now let's just look at questions number 11 and 12. So an integer d is called a factor of an integer n, obviously if there's an integer q such that n is equals to qd. In particular, the set of factors of n contains n and it contains 1. And you are given that 2024 ka factorization is this. Okay. Write the number of even positive integers. Write the number of even positive integers that are factors of 2024 squared. Alright, so सबसे पहले 2024 को हम 2024 का स्क्वायर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, ठीक है? तो दैट इज 2 क्यूब, 2024 में 2 की पावर क्यूब की है, तो इसके स्क्वायर में ऑब्वियसली पावर 6 हो जाएगी, 11 के आगे स्क्वायर आ जाएगा, 23 के आगे स्क्वायर आ जाएगा. Now what do we want? We want the even positive integer factors of 2024 squared. तो अब हम वो फैक्टर्स कैसे ले सकते हैं, राइट? मुझे पता है कि मैं अगर मान लो मेरा एक फैक्टर कुछ है इसका, मान लो मेरा कुछ फैक्टर f है इसका, तो उसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो ऑब्वियसली उसके फैक्टर्स कुछ ऐसे फॉर्म के होंगे, 2 into 11 into 23, here we have a, here we have b, here we have c. अब क्योंकि मुझे इवन पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर्स चाहिए, तो मुझे पता है कि a मेरा विल बी ग्रेटर इक्वल टू 1, बट ऑब्वियसली a इज लेस देन इक्वल टू 6. b मुझे पता है कि जो होगा वो 0 से लेकर 2 तक होगा, एंड सिमिलरली c मुझे पता है कि 0 से लेकर 2 तक होगा, राइट? तो ये मुझे पता है क्योंकि मुझे इवन पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर्स चाहिए थे. अगर मुझे इवन चाहिए होते तो मैं इस 1 को 0 कर देता, बट क्योंकि मुझे इवन चाहिए इसलिए मुझे यहाँ 1 लेना पड़ेगा. Right, now for A I have 6 choices, right? For B I have 3 choices, so 6 into 3 is my answer. Yeah, 6 into 3 is your answer, right? So that is nothing but 54. Okay, so again a fairly easy problem. Now write the number of ordered pairs a comma b of positive integers such that a squared minus b squared equals 2024 squared. Okay, so we need to write the number of ordered pairs a comma b such that a squared minus b squared equals 2024 squared. And if there are infinitely many answers, then you just write the word infinite is your answer. Okay, so what do we want? A squared, okay, minus b squared should be equal to 2024 squared. So we need to observe that 2024 का squared is equals to, अब मुझे पता है कि obviously I can write this as a minus b into a plus b equals 2024 squared. Now observe that 2024 squared equals a plus b into a minus b is a factorization with unequal factors of the same parity which must be even.
right? Obviously these are unequal factors and they have the same parity, right? Basically they are the same congruent mod 2, right? Now conversely, if we are given a factorization of dq of 2020, if we are given a factorization dq of 2024 squared into even unequal factors, we get a unique solution for a comma b by solving a plus b to be the largest factor and a minus b to be the smaller factor, right? Because obviously a and b are positive integers. So अगर तुम्हें एक फैक्टराइजेशन दे रखी है, अगर तुम्हें दे रखा है कि dq जो है वो 2024 स्क्वायर के इक्वल है, तो मान लो d जो है वो लेस देन q है, I mean without loss of generality, then obviously I can just keep a plus b equals q and a minus b equals d and solve for it, right? So it's saying that अगर हमें फैक्टराइजेशन दी होती 2024 स्क्वायर की, तो मुझे पता है कि मैं ए और बी को बहुत इजीली निकाल लेता, राइट? एंड हमें यह भी पता है कि 2024 के स्क्वायर का अगर मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूं इस फॉर्म में, तो ऑब्वियसली ए प्लस बी और ए माइनस बी की पैरिटी सेम है, या तो दोनों ऑड है या दोनों इवन है, ठीक है? नाउ द नंबर ऑफ फैक्टर्स डी सच दैट बोथ डी एंड 2024 बाय डी आर इवन is 45 as the power of 2 in D cannot be 0 or 6, right? Of these, the equal factors case, right? So this is what we are saying. हम बोल रहे हैं कि तुम मुझे बेसिकली 2024 को स्क्वायर को ब्रेक कर दो. मुझे ऑल आई नीड फ्रॉम द प्रॉब्लम इज दैट अगर मुझे तुम 2024 के स्क्वायर को एक फैक्टराइजेशन डी इंटू क्यू में ब्रेक करके दे दोगे, तो मैं अपने ए प्लस बी, ए और बी को आराम से निकाल सकता हूँ, गिवन दैट इट सेटिस्फाइज सर्टेन कंडीशंस, है ना? मुझे पता है कि मैं ए और बी को अपने आराम से निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग दिस, बट द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज कि कुछ कंडीशंस हो, जैसे कि द ओनली कंडीशन एक्चुअली दैट वी वांट इज दैट डी और क्यू का पैरिटी सेम हो. डी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू मॉड 2, राइट? डी और क्यू का पैरिटी अगर मेरे पास सेम है, तो मैं ए प्लस बी को क्यू सेट कर दूंगा, ए माइनस बी को डी सेट कर दूंगा, और मेरे पास मेरे ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी, राइट? क्योंकि अगर मेरे पास इनकी पैरिटी डिफरेंट हो जाएगी ना, अगर डी और क्यू की पैरिटी डिफरेंट हो जाएगी, तो मेरे पास ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं आएंगे, एंड आई नीड ए एंड बी टू बी पॉजिटिव इंटीजर्स. हेंस आई वांट दैट इनकी पैरिटी सेम हो. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. वेयर वर वी? या, सो वी नाउ नो दैट अगर तुम मुझे डी और क्यू दे दोगे, तो मैं ए और बी निकाल लूंगा, गिवन दैट डी और क्यू की पैरिटी सेम है. और ऑब्वियसली डी इंटू क्यू इज 24 स्क्वायर्ड, और मुझे पता है कि डी और क्यू दोनों ऑड तो हो सकते नहीं, तो डी और क्यू दोनों को इवन होना पड़ेगा. सो अगर मैं बेसिकली डी और क्यू को स्प्लिट करूं, तो मुझे ऑब्वियसली अगर मैं इनमें से किसी एक फैक्टर को देखूं, उसको कुछ टर्म मैं बेसिकली अगर मान लो मेरा डी, राइट, लेट्स जस्ट से राइट वन ऑफ माय फैक्टर्स डी लाइक दिस, तो क्यू मुझे पता है कि ऑब्वियसली अगर डी कुछ है, तो क्यू मुझे पता है बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 2 to the power 6 माइनस से इंटू 11 इंटू 2 माइनस बी इंटू 23 इंटू 2 माइनस सी. तो मुझे पता है कि मेरे डी से मेरा क्यू भी यूनिकली डिटर्मिन हो रहा है, तो मुझे सिर्फ डी को देखना है, और मुझे पता है कि मेरा डी और क्यू दोनों इवन होना चाहिए, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पास. तो अगेन मेरे पास बी के लिए 3 चॉइसेस हैं, क्यू के सी के लिए 3 चॉइसेस हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बी जो है वो 0 से लेकर 2 तक के बीच में है, सी भी मेरा 0 से लेकर 2 तक के बीच में है. ए मुझे पता है कि वैसे तो मेरा 0 से लेकर 6 तक के बीच में हो सकता है, बट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डी और क्यू दोनों इवन हो, तो मैं इसकी रिस्ट्रिक्शन को ऐसे ये कर दूंगा, एंड दैट्स इट. क्योंकि मुझे पता है कि अगर ए की वैल्यू 5 और 1 के बीच में होगी, तो मैं डी और क्यू में दोनों इवन इंश्योर हो जाएंगे, एंड दैट्स ऑल आई केयर अबाउट. तो बेसिकली मेरे पास ए के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं. सो 5 इंटू 3 इज योर आंसर. सो टोटल 45 वैल्यूज मेरे को टोटल 45 तरीके मिल रहे हैं डी और क्यू को स्प्लिट करने में. राइट नाउ व्हाट डू वी वांट इज वी वांट द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. ये 45 तरीकों से मुझे पेयर्स मिल रहे हैं, बट इसमें एक चीज़ है बस, सी मैं चाहता हूँ कि मेरे को पता है कि मेरे ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो मुझे पता है कि मेरा ए और बी 0 के इक्वल, ए और बी में से कोई भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता. बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर मैं ए को 2024 ले लूँ और बी को 0 ले लूँ, तो दैट ऑल्सो सॉल्व्स ऑल ऑफ आवर कंडीशंस एंड दिस इक्वेशन एज वेल. सो बेसिकली मुझे इस केस को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो 45 में से मुझे एक जो है पेयर हटाना पड़ेगा, विच इज़ द पेयर ऑफ 2024 का पेयर मेरे को हटाना पड़ेगा, और 2024 का पेयर, सॉरी वेट नहीं 2024 का पेयर. हाँ, सो आई नीड टू रिमूव वन पेयर ऑफ 2024, ठीक है. सो वो पेयर अगर मैं रिमूव कर दूंगा, तो मेरे को अब जितने भी पेयर्स मिल रहे हैं, सब में जो डी और क्यू है वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है. डी और क्यू डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, तो मैं ऑब्वियसली इंश्योर कर सकता हूँ कि मेरा ए और बी जो है वो नॉन जीरो और पॉजिटिव होंगे. नाउ अनदर थिंग इज कि
क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर अपने मुझे क्योंकि अब मैंने इस पर ऑब्वियसली एक ऑर्डर भी इंश्योर करना पड़ेगा। अभी मुझे पेयर मिल रहे हैं, उसमें फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर मुझे कुछ मिल रहा है पेयर डी कॉमा क्यू, तो डी कॉमा क्यू हम ऑलरेडी यहाँ नाम यूज़ कर सकते हैं। मान लो मुझे अगर कुछ पेयर मिल रहा है एक्स कॉमा वाई, तो मुझे ऑब्वियसली वाई कॉमा एक्स भी मिलेगा, राइट। अगर मुझे एक्स कॉमा वाई मिल रहा है तो मुझे वाई कॉमा एक्स भी मिलेगा। बट मुझे पता है कि बाय डिफॉल्ट मैं बड़े वाले को ए प्लस भी दे रहा हूँ, छोटे वाले को ए माइनस भी दे रहा हूँ, तो मुझे इन दोनों से रेपिटेशन मिल रही है ए और बी की वैल्यूज़ में, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि बाय डिफॉल्ट मैं बड़े वाले को ए प्लस भी असाइन कर रहा हूँ, छोटे वाले को ए माइनस भी असाइन कर रहा हूँ। तो अगर मान लो इसमें एक्स वाई से बड़ा है तो पहले केस में भी ए प्लस बी इक्वल्स एक्स, ए माइनस बी इक्वल्स वाई होता है, इस केस में भी ए प्लस बी इक्वल्स एक्स, ए माइनस बी इक्वल्स वाई होता है। तो मुझे रेपिटेशन मिल रही है। तो मुझे बेसिकली हर एक पेयर का मुझे पता है कि उसका इन्वर्जन भी हो सकता है, एक्स कॉमा वाई वाई बाई एक्स पे, तो मुझे पता है मुझे डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। तो 44 टोटल पेयर्स हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो 22 ऐसे पेयर्स मिल रहे हैं जिसमें मुझे पता है कि एक ऑर्डर भी है। लेट्स जस्ट से द ऑर्डर इज की जो पहला एंट्री होगा पेयर का वो सेकंड एंट्री से छोटा होगा, ऑर्डर भी है और ऑब्वियसली अनइक्वल एंट्रीज भी है। सो दैट्स ऑल आई केयर अबाउट एंड दैट इज ऑल आई नीड एंड हेंस द आंसर हैज 22 सॉल्यूशंस। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट्स गोना गो। So a good path is a sequence of points in the xy plane such that in each step exactly one of the coordinates increases by 1 and the other stays the same. So good path में basically क्या होता है कि जब तुम अपने ith स्टेप से i प्लस 1th स्टेप पे जा रहे हो तो तुम जिस भी कोऑर्डिनेट पे हो तुम बस उसमें से कोई एक कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहे हो और उसमें 1 ऐड कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ मैंने 0 को 1 किया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर 1 को 2 किया, यहाँ मैंने 0 को 1 कर दिया, फिर मैंने यहाँ 2 को 3 कर दिया, फिर यहाँ मैंने 1 को 2 कर दिया और 2 को ही 3 कर दिया। सो यू कैन सी एवरी कोऑर्डिनेट में मैं बस एक ऐड कर रहा हूँ और दूसरे कोऑर्डिनेट को मैं चेंज नहीं कर रहा। एंड दिस इज अ गुड पाथ फ्रॉम द ओरिजिन टू 3/3। अनदर वे टू अंडरस्टैंड अ गुड पाथ इज नथिंग बट दिस। देखो एक और तरीका है गुड पाथ को समझने का कि अगर तुम किसी पॉइंट पे हो ना पी कॉमा क्यू पे, तो तुम बेसिकली या तो उससे एक स्टेप राइट जा रहे हो p कॉमा क्यू प्लस 1 पे p प्लस 1 कॉमा क्यू पे, या फिर तुम उसे एक स्टेप अबव जा रहे हो विच इज p कॉमा क्यू प्लस 1। सो दैट इज बेसिकली व्हाट अ गुड पाथ इज कि तुम एक पॉइंट पे अगर हो कोऑर्डिनेट प्लेन में तो तुम उसे या तो एक स्टेप राइट जा रहे हो या एक स्टेप अप जा रहे हो बस। ठीक है, सो नाउ इट इज इन फैक्ट नोन दैट देयर आर एक्जैक्टली 924 गुड पाथ्स फ्रॉम द ओरिजिन टू 6,6। सो वी आर ऑलरेडी गिवन दैट द ओरिजिन से लेकर 6,6 तक मेरे पास 924 गुड पाथ्स हैं। ठीक है, now find a number of good paths from 0 to 6,6 that pass through both the points 1,4 and 2,3। ठीक है, एक्चुअली बताऊं गुड पाथ को किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट निकालने का मेरे पास गुड पाथ का मैं तुम्हें जनरल फॉर्मूला दे सकता हूं और उससे तुम्हारे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लुक क्लोजली हियर, एक्चुअली यहाँ तो हमें एक्चुअली जनरल फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं है। लुक क्लोजली, we want to find the number of good paths from 0 to 6,6 that pass through both the points 1,4 and 2,3. Now I'll show you something. Wait. So what did we have? Let's just say let's just look at the coordinate axis. Alright, so we are at 0,0 and we want to reach 6,6 and we want to visit the points 1,4, which is x coordinate 1, y coordinate 4. So it's like something like maybe this 1,4, and we also want to reach the point 2,3, which is like somewhere like this. Okay, now think about it. गुड पाथ में मैंने आपको बताया कि आप किसी भी पॉइंट से या तो राइट जाते हो या या ऊपर जाते हो एक स्टेप। अगर मैं 1,4 पे मान लो पहुंच भी गया, अगर मैं मान लो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, आई मीन without loss of generality यहाँ पर ऐसा चलना like maybe not the right term to use, but let's just okay, so case one की I reach 1,4 before I reach 2,3। मुझे दोनों पॉइंट्स को विजिट करना है, ऑब्वियसली मैं किसी को पहले करूंगा किसी को बाद में करूंगा। मान लो मैंने 1,4 को पहले रीच किया, अब जब मैं 1,4 पे पहुंच गया तो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू रीच 2,3 बाय फॉलोइंग द गुड पाथ रूल? नो, बिकॉज 1,4 के नीचे है 2,3। तुम क्योंकि वो देखो ना उसका y कोऑर्डिनेट छोटा है इससे, और गुड पाथ में मुझे पता है कि हमेशा या तो x कोऑर्डिनेट बढ़ता है या y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, कभी भी कोऑर्डिनेट्स कम नहीं हो सकते। अगर मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पर गुड पाथ में और मैं मान लो x, y से कुछ पॉइंट बाद मान लो कुछ h, k पे जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये रूल फॉलोड है गुड पाथ में कि h इज ग्रेटर इक्वल टू x एंड y इज ग्रेटर इक्वल टू k इज ग्रेटर इक्वल टू y।
है ना, गुड पाथ में कभी भी कोऑर्डिनेट्स डिक्रीज नहीं हो सकते आगे वाले पॉइंट में सीक्वेंस के। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 1,4 के बाद मैं 2,3 पे जा रहा हूँ, बट भाई 3 to 4 से छोटा है तो नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर मैं 2,3 पे पहले आया होता फिर मैं 1,4 पे गया होता, ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट, बिकॉज 2,3 में जो 2 है, अगर मैं 2,3 पे पहले आया हूँ और फिर मैं मान लो किसी पॉइंट पे बाद में 1,4 पे पहुंचा हूँ तो ये भी पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज 1 इज लेस देन 2, बिकॉज 1 इज लेस देन 2, राइट? So this is also not possible. तो हम बेसिकली इन बोथ द केसेस, बीट वी रीच 1,4 फर्स्ट और 2,3 फर्स्ट, हमें पता है कि बोथ केसेस में हम दूसरे वाले पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते बिकॉज ऑफ दिस रूल कि गुड पाथ में हमेशा कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो सीक्वेंस में आगे बढ़ते वक्त या तो बेसिकली इंक्रीजिंग होते हैं, बेसिकली h ग्रेटर देन इक्वल टू x होता है, k ग्रेटर देन इक्वल टू y होता है, ठीक है? तो ये एक सिंपल रूल हमें गुड पाथ का याद रखना है। ऑलराइट, सो इसका आंसर तो 0 है, राइट? Now find a number of good paths from 0,0 to 6,6 that pass through both the points 1,2 and 3,4. अब देखो मैं पहले तो 3,4 पे नहीं पहुंच सकता, पहले तो मुझे 1,2 पे ही पहुंचना पड़ेगा बिकॉज 3,4 के बाद तो मैं 1,2 पे जा नहीं पाऊंगा बाय द गुड पाथ रूल। तो पहले मैं 1,2 पे जाऊंगा, फिर मैं 3,4 पे जाऊंगा, फिर ऑब्वियसली मैं 6,6 पे जाऊंगा, जिस भी तरीके से मैं जा सकता हूँ, ठीक है? अब इसको देखते हैं। अब ये एक्चुअली में एक बहुत ही सिंपल तरीका है इसको कमेंट लॉजिक से करने का, मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ व्हाट डू वी वांट टू डू? सबसे पहले हमें जाना है 1,2 पे। सबसे पहले हमें जाना है 1,2 पे, फिर हमें जाना है 3,4 पे, फिर हमें जाना है 3,4 पे। इन पॉइंट्स को हम इरेज कर सकते हैं। देखो ना, मुझे ऑब्वियसली 1,2 पे पहले जाना पड़ेगा, फिर 3,4 पे जाना पड़ेगा, फिर 6,6 पे जाना पड़ेगा। मुझे यही ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कि पहले इस पे चला गया फिर इस पे आ गया, नॉट पॉसिबल बाय द गुड पाथ रूल। तो पहले इस पे पहुंचना है, फिर इस पे पहुंचना है, फिर इस पे पहुंचना है। मुझे पता है कि मेरे पास क्या व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई कैन फॉलो। या तो मैं एक स्टेप राइट जाऊंगा, या तो मैं एक पॉइंट से एक स्टेप राइट जाऊंगा, राइट, या मैं हर एक पॉइंट से एक स्टेप ऊपर जाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले 0,0 से 1,2 तक मेरे को निकालने हैं वो पाथ्स, फिर मुझे 1,2 से 3,4 तक निकालने हैं वो पाथ्स कि वो कितने हो सकते हैं। फिर मुझे 3,4 से 6,6 तक निकालने हैं वो पाथ्स। है ना, ठीक है ना? ऑब्वियसली द रूल आई नो इज दैट मुझे या तो राइट वाला पॉइंट लेना है या लेफ्ट वाला पॉइंट लेना है, सॉरी ऊपर वाला पॉइंट लेना है हर एक पॉइंट से। तो देखो ये तो सिंपल कमेंट लॉजिक से कर सकते हो आप। हमें पता है कि मेरे को सबसे पहले आई वांट टू रीच 0,0 से 1,2 तक, राइट? आई वांट टू रीच 0,0 से 1,2 तक। तो मुझे पता है कि पहला कोऑर्डिनेट में मुझे 1 का इंक्रीज चाहिए, दूसरे कोऑर्डिनेट में मेरे को 2 का इंक्रीज चाहिए। तो पहले कोऑर्डिनेट में तो बेसिकली आई नीड 1 राइट स्टेप एंड 2 ये वाले स्टेप्स, राइट? मेक सेंस ना, कि पहले मुझे एक स्टेप मेरा राइट का और 2 स्टेप मेरे को ऊपर जाना है। एक स्टेप राइट, 2 स्टेप, अगर मैं 0,0 से एक स्टेप राइट लूँ और 2 स्टेप ऊपर जाऊँ किसी भी, और इनको मैं किसी भी तरीके से रीअरेंज करूँ कि पहले मैंने एक स्टेप ऊपर ले लिया, फिर मैंने एक स्टेप राइट ले लिया, फिर मैंने एक स्टेप ऊपर ले लिया, फिर मैंने पहले एक स्टेप दोनों स्टेप ऊपर ले लिया, फिर मैंने एक स्टेप राइट ले लिया, तो किसी भी तरीके से इनको अरेंज कर सकता हूँ। बट मुझे पता है कि इन स्टेप्स को यूज करके मैं 0,0 से 1,2 पे पहुंचूंगा। सो नाउ वी हैव 2 स्टेप्स अबव। अब इसको कितने तरीकों से हम रीअरेंज कर सकते हैं? दिस इज 1 + 2 C2 और 1 + 2 C1, डजंट मैटर, बेसिकली 3 C2, राइट? क्योंकि मेरे पास टोटल मेरे पास 3 स्टेप्स हैं और मेरे पास उसमें से रेपिटेशन किस में, इसमें मेरे पास 2 की रेपिटेशन है और इसमें मेरे पास 1 है बस, तो ऑब्वियसली 3 C2। सिमिलरली जब मैं 1,2 से 3,4 पे जाना चाहूंगा, अगेन आई नीड 2 स्टेप्स टू द राइट एंड 2 स्टेप्स इन द अबव डायरेक्शन, इन द टॉप डायरेक्शन। तो मेरे पास अगेन 2 राइट वाले होंगे, 2 टॉप वाले होंगे, तो 4 C2 आंसर हो जाएगा। बिकॉज टोटल नंबर ऑफ हमें बेसिकली क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ दिस निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ दिस निकालनी है। एंड आई थिंक यू नो द फॉर्मूला बाय, दिस इज द बेसिक कॉमेंट, इसी से कॉमेंट और का फॉर्मूला NCR डिराइव हुआ था। सो आई मीन दिस इज प्रीटी ऑब्वियस दैट ये 3 C2 होगा इस केस में, और जब दो राइट और 2 टॉप आ जाएंगे तो 4 C2 हो जाएगा।
राइट. सो बेसिकली योर आंसर विल बी, अगर मैं दिखाऊं यहां पर तुम्हें, ये 3C2 देगा, ये 4C2 देगा, और ये कितना देगा, 3 प्लस 3, इसका डिफरेंस है 3 प्लस 2 5C3 ये देगा. So 10 plus 4, 5C3 is 10, 4C2 is what? I think 4 factorial is 24 over 4, 6. 10 plus 6, 16 plus 3, 19 is your answer. Give 3C2 pass, this is going to give 4C2 pass, this is going to give 5C3 pass. And obviously, total number of distinct pass is nothing but the multiplication of these three coefficients. And that's your answer, which is one, which comes out to be 180. Right? So yeah. Now you need to find a number of good paths from 0, 0 to 6, 6 such that neither of the 2 points 1, 2 and 3, 4 occur on the path. बेसिकली हम चाहते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स को हम कंप्लीटली मिस करें. ठीक है, हम चाहते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स अकर ही ना हो. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम यूज कर सकते हैं सेट इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सबसे पहले यू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पाथ्स. पहले तुम माइनस करोगे वो वाले पाथ्स जो 1, 2 से माइनस होते हैं, फिर तुम माइनस करोगे वो वाले पाथ्स जो 3, 4 से माइनस होते हैं, फिर लास्ट में तुम वो वाले पाथ्स ऐड करोगे जो दोनों से पास होते हैं. एंड देन बाय इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यू विल गेट दोस पाथ्स जो दोनों से ही नहीं निकलते. राइट. सो अगेन 1, 2 से इतने पाथ्स हैं जो निकलते हैं, 3, 4 से मुझे पता है कि इतने पाथ्स निकलते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ पाथ्स जो 1, 2 या 3, 4 से पास होते हैं वो ऑब्वियसली हो जाएंगे वो वाले पाथ्स जो या तो 1, 2 से पास होते हैं या 3, 4 से पास होते हैं. सो नंबर ऑफ पाथ्स थ्रू 1, 2 और 2, 3 इज नथिंग बट नंबर ऑफ पाथ्स थ्रू 1, 2, नंबर ऑफ पास टू 3, 4, बट देन यू सब्ट्रैक्ट जो इन दोनों से पास होते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली इन दोनों में काउंट हुए हैं, इसमें भी काउंट हुए हैं, इसमें भी काउंट हुए हैं, वो वाले पास जो दोनों से पास होते हैं. सो बाय इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल द नंबर ऑफ पाथ्स थ्रू 1, 2 और 3, 4 इज 548, एंड देन number of paths missing both 1, 2 and 3, 4 is nothing but 924 minus 548, which is obviously 924 is the total number of paths and 548 is that pass through either of them. So when you subtract 924 from 548, you are going to get that दोनों से जो ना पास होने वाले paths. Right? तो basic inclusion exclusion principle. Total number of paths minus जो 1, 2 से पास होते हैं, minus जो 3, 4 से पास होते हैं, and last में you add जो दोनों से ही पास होते हैं. Right? Alright, perfect. For every question here हमें यहाँ पर ये correct option choose करना है. अच्छा जी. Suppose f is a function whose domain is x and codomain is y. So basically f goes from x to y. Right? It is given that mod of x, basically the cardinality of x is greater than 1 and the cardinality of y is also greater than 1. And और कोई information नहीं दे रखी, सिर्फ ये दे रखा है और ये दे रखा है. ठीक है. ओके. फॉर ईच एक्स इन एक्स, अब हम ये बोल रहे हैं कि फॉर ईच एक्स इन एक्स देयर एग्जिस्ट अ वाई इन कैपिटल वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज वाई. ऑब्वियसली सिंस एफ एक फंक्शन है, राइट, सो फर्स्ट वन इज ऑब्वियस. आई जस्ट लाइक गॉट कंफ्यूज्ड देयर फॉर अ सेकंड. फर्स्ट वन इज ऑब्वियस, राइट, बिकॉज थिंक अबाउट इट. डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ही क्या होती है कि हम डोमेन के सारे पॉइंट को मैप करते हैं. सो फर्स्ट वन इज जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. राइट नाउ 17th वन सेज फॉर ईच वाई इन वाई देयर एग्जिस्ट एन एक्स इन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज वाई. बेसिकली हम बोल रहे हैं कि एफ इज सब्जेक्टिव, बट हम वी कैन नॉट क्लेम दैट. हमें पता नहीं और कोई इन्फॉर्मेशन में देनी रखी. सो एस इज ट्रू if and only if f is on 2. तो मुझे पता है कि ये क्लेम तभी ट्रू है जब मुझे दे रखा है कि f is on 2. So hence S is true if and only if f is on 2. Again very easy. So ये actually question बहुत easy है, just careful reading and all that stuff. And 18th and 19th part say there exists a unique x in x such that for each y in y it is true that f of x is y. That's impossible because you are saying that for एक फंक्शन a की पॉइंट को, अब देखो रिमेंबर मुझे दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ y, the cardinality of the second set, the cardinality of codomain is greater than 1. So you are saying that there exists some x such that f of x is actually equal to y. So basically it maps to multiple y's. So at least 2 y's, at least 2 small y's, right? मुझे पता है cardinality of y is at least greater than equal to 2. So there are at least 2 arrows going from x to the codomain y.
right? And that is not possible by the definition of function. So hence 18th is that S is always false. And now what is the last one? There exists a unique y in y such that for each x in x, it is true that f of x is y. And this is obviously true if and only if f is given to be 1, 1. Wait. There exists a unique y in y such that for each x in x, it is true that f of x is y. हम बोल रहे हैं कैपिटल Y में एग्जैक्टली एक ऐसा Y है मेरे पास सच दैट सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं x कैपिटल X में वो सब इसको मैप करते हैं. When is that true? Obviously when f is a constant function, right? So this is also again very easy. All right. Now we have questions 20 and 21 and this is something like, so basically यहाँ पर तुम्हें एक claim दे रखा है, यहाँ पर तुम्हें एक claim दे रखा है कि तुम्हारे पास एक differentiable function है f r से लेकर r तक. So तुम्हारे पास एक differentiable function है f r से लेकर r तक और मैं बोल रहा हूँ कि उसका local maxima है a, f of a पे. तो a, f of a पे मैं claim कर रहा हूँ कि function का एक local maxima है, function differentiable है. Alright, yeah, so first वाले पार्ट में हमें बेसिकली पूरे के पूरे क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक करना और कुछ नहीं है. और हमें बेसिकली एक कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसका नीचे प्रूफ दे रखा है और हमें वो प्रूफ को कंप्लीट करना है. ठीक है, तो पहले एक बार प्रूफ का थोड़ा सा ब्लूप्रिंट समझते हैं. फॉर सफिशिएंटली इट इज गिवन दैट f of a plus h, और कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसका हमें प्रूफ दे रखा है उसको हमें कंप्लीट करना है ना. ठीक है, सो फॉर सफिशिएंटली स्मॉल, आई थिंक यहाँ स्मॉल होगा. सो फॉर सफिशिएंटली स्मॉल h ग्रेटर देन 0 इट इज गिवन दैट f of a plus h इज लेस देन इक्वल टू f of x, है ना. इज लेस देन इक्वल टू f of a plus h is less than equal to f of a, sorry, is less than equal to f of a. Therefore, for h such h the quantity, a question, the instruction says that we have a differentiable function from r to r and we have a local maximum at a comma f of a. This means that there are numbers m and m, small m and capital M, such that if m, small m is less than a is less than m, capital M. Okay, so we have these two things obviously because, you know, if small a is less than a is less than capital M, then obviously f of a is greater than equal to x for any x in this range, right? Because मुझे पता है कि a, fa पे मेरा local maximum है, तो मुझे पता है कि मैं एक a के अराउंड एक छोटा सा इंटरवल ले सकता हूँ, सच उस इंटरवल में f of a जो है वो सारे के सारे नंबर्स उस इंटरवल में उनसे बड़ा है. ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसका हम प्रूफ नीचे स्केच कर रहे हैं. एंड लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रूफ एंड सी कि ये प्रूफ में भी किस चीज़ का हो सकता है. ठीक है, सो फॉर सबसे पहले तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो योर थिंग शुड बी दैट फॉर सफिशिएंटली स्मॉल h ग्रेटर देन 0, तो फॉर सफिशिएंटली स्मॉल h ग्रेटर देन 0 it is given that if we know if it is given that f of a plus h is less than equal to f of a plus h, which is less than equal to is e and j. So I won't be writing the options here. Actually, I feel like I don't need to do that because I kind of remember the options in my head. So for sufficiently small h greater than 0, we know that f of a plus h is less than equal to f of a, right? Therefore, for such h, the quantity, जो ये quantity है, कौन सी quantity? ये quantity यहाँ पर है f of a plus h minus f of a over h. ये quantity जो है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमें k दे रखा है बेसिकली, ये वाली क्वांटिटी ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 0 होगी, राइट? लेस देन इक्वल टू भी है और 0 भी है ना. ये क्वांटिटी ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 0 होगी. एंड इफ यू टेक द लिमिट ऑफ दिस क्वांटिटी एज h गोज टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से मतलब कि h पॉजिटिव है और ऑब्वियसली ऊपर वाला पार्ट नेगेटिव है, क्योंकि मतलब नेगेटिव नहीं है, मतलब इट्स लेस देन इक्वल टू 0. So when you take this limit of this quantity as h goes to 0 from the right, we get that f dash of a, because मुझे पता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मुझे पता है कि इसका जब मैं लिमिट लूंगा राइट हैंड साइड से, दैट इज जस्ट गोइंग टू बी इक्वल टू f dash of a.
So मुझे पता है कि f dash a must be less than equal to 0. Similarly, a parallel argument for negative result of s gives that f dash of a must be greater than equal to 0. Combining both conclusions gives us that f dash of a is actually equal to 0. And note that the mentioned limits exist. Why? Because f is differentiable. Because f is differentiable. Right? So that is why this result makes sense. So if you now realize, obviously this is nothing but the standard proof of the result that if you have a local maxima at a point and f is differentiable, then that at that point your derivative is 0. So that's exactly what's happening here. All right, so I guess that's okay. So I guess that's it for part A, and we'll jump to part B. I guess let's start with question number B2. So what does B2 say? B2 says that find the domain of the function g of x defined by the following formula. So g of x को हमने इस formula से define कर रखा है, ठीक है? Now we want to find the domain of this. Now the only thing that can create a problem, so let's just say there's a point x और वो तभी domain में नहीं होगा जब g of x की value obviously हम define नहीं कर सकते होंगे, right? So हमें basically somehow ये देखना है कि g of x किन values of x के लिए defined है, right? Now if you look at this polynomial inside, ये जो ये t square में जो मुझे polynomial दे रखा है, इस polynomial की minimum value क्या है? अगर मैं इसको लिखूं अभी यहाँ पर t into t minus 1000 plus 10 to the power 1000. Now obviously इसकी minimum value, इस polynomial की जो minimum value होगी वो इसकी minimum value होगी, और इसकी minimum value I think you guys can already, I mean this is very easy to see that इसकी minimum value obviously t equals 500 पे होगी. So इसकी minimum value t equals 500 पे आएगी हमारे पास, and the minimum value is going to be minus 2500. But if you think about it, minus 2500 is getting like hugely overshadowed by this very big number. All in all, our point is that for no t whatsoever, this log is ever going to be undefined. So for no t whatsoever, is this ever going to be negative? Which in turn means that, so when is the argument inside a log number, when is an argument problematic? जब उसका basically argument जो हो वो negative हो जाए. That is when we cannot define log, over the reals. But we know that since this is always going to be very positive, like the whole polynomial, the पूरे polynomial की minimum value ही 10 to the power 1000 minus 2500 है. So obviously this is a very positive number. तो log, जब मैं इसका log 10 करूँगा तो मुझे पता है कि मुझे again एक काफ़ी बड़ा positive number मिलेगा, और उसके बाद जब मैं उसका वापस log 10 करूँगा तो मुझे again एक positive number मिलेगा. Basically all in all it means that g of x में कोई भी ऐसा x जो g of x का domain है, we can actually define the domain to be all the real numbers. कोई भी ऐसा real number नहीं है x जिससे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. वाई? बिकॉज मुझे पता है कि ये जो अंदर वाला पार्ट है ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा. Anyways, so now your part B is find the value of G1000, right? So now it says that you may give an approximate answer where necessary, but clearly state which answers are exact and which are approximations. Now हम G of 1000 को approximately calculate करेंगे, और उसका actually answer is not that tricky at all. Right, so we know that the log function obviously increases very slowly. So log function we know increases very slowly. So obviously log of log increases extremely slowly. Right, so in the interval 10, 1000, मुझे पता है कि जो values हैं 10 t squared minus 1000 t, ये obviously इस range में, क्योंकि इसकी minimum value minus 25, मैंने minus 2500 लिखा था क्या वहाँ पर? Oh, I'm sorry, it was a minus 25 into 10 to the power 4. It was a slight mistake, but the main point being it's still, even if it's minus 25 into 10 to the power 4, it's still insanely overshadowed by 10 to the power 1000, so it doesn't really make any difference. Anyways, the point being that the minimum value is minus 25 into 10 to the power 4, and in this interval 10, 1000, obviously इसकी जो maximum value है, it's just going to be 0, which is at exactly 1000, right? So we know that इसकी जो values हैं वो इस range में हैं, and they have, और जो 10 to the power 1000 है ना, वो it's a 1000 digit number. So ये जो इतना सा number है, ये जो 6 digit का number है, even though it's negative, it's not really gonna have that much effect on this, right?
सो थ्रू आउट द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन 10,1000 जो ये log 10 ये नंबर जो है, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर वाला नंबर 10 to the power 1000 के बहुत ज़्यादा क्लोज है और log मुझे पता है कि बहुत ही स्लोली इंक्रीज करता है. सो अगर log मतलब मैं अगर मान लो मैं 10 to the power 1000 मान लो मेरा ये वाला कुछ है और log की कुछ मेरी वैल्यू यहाँ पर है, तो अगर इसने कुछ डिफरेंस मैं इसमें मान लो अगर -25 ये कर भी दूँ तो मेरे पास बेसिकली ये कुछ यहाँ आ जाएगा. सो ये 10 to the power 1000 -25 कुछ यहाँ आ जाएगा, राइट. और क्योंकि log इंक्रीजेस वेरी स्लोली, तो ये जो होगा अगर यहाँ ये कुछ यहाँ पर है, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली 1000 है, तो इसकी वैल्यू बहुत ही क्लोज होगी 1000 के. ठीक है, तो मुझे पता है एक्सट्रीमली क्लोज टू 1000. अब तो तुम इसका वापस लॉग कर दोगे तो अब तो तुमने पहले वाला लॉक किया ही है और मुझे पता है कि अगर तुम इसका वापस लॉक कर दोगे तो वो 3 के एक्सट्रीमली क्लोज हो जाएगा, राइट. सो योर फाइनल जो लॉक करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्लोज टू 3. सो यू कैन जस्ट प्रैक्टिकली फॉर द होल इंटरवल 10,1000 यू कैन जस्ट प्रैक्टिकली कंसिडर द वैल्यू 3. ओके, यू कैन जस्ट प्रैक्टिकली कंसिडर द वैल्यू ऑफ दिस होल थिंग फॉर दिस 10 to the, अगर मेरे पास यहाँ पर जैसे मेरे को यहाँ 1000 है ना, ये मेरा 1000 हो जाएगा, तो फॉर दिस होल इंटरवल यू कैन जस्ट प्रैक्टिकली कंसिडर दिस होल थिंग टू बी जस्ट इक्वल टू 3. ठीक है, just to be equal to 3. So in that case your interval will just be 3 into 1000 minus 10, which is nothing but 2970. So your answer will be extremely close to 2970. Hence for part B we have an approximation. Okay, parts number C and D को हम साथ में solve करेंगे. We want the point where we have the maximum possible slope and we want the point where we have the minimum possible slope. ठीक है, for g of x. Now slope of g of x is obviously g dash x, which is nothing but this function, obviously, right? And by the fundamental theorem of calculus, there is nothing too special here. As log 10 is an increasing function, we may simply discard the log 10 in the front and find extrema. देखो log एक increasing function है and log of log भी एक increasing function है. तो अगर तुम्हें बेसिकली x squared minus 100 x squared minus 1000 x plus 10 to the power 1000 को ओवर दिस इंटरवल स्टडी करना भी है ना, तो तुम्हें पता है कि अगर तुम इसका एक्सट्रीमा निकाल लोगे तो तुम्हें log 10 ऑफ द पॉलिनोमियल का एक्सट्रीमा मिल जाएगा. अगर तुम इस पॉलिनोमियल का एक्सट्रीमा निकाल लोगे इस इंटरवल में तो तुम्हें log 10 ऑफ दिस पॉलिनोमियल का एक्सट्रीमा में मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि log ऑफ log इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. आफ्टर नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस, मुझे पता है कि ये पैराबोला जो है इसका मिनिमम वैल्यू आई ऑलरेडी नो x इक्वल्स 500 पे आता है, राइट. एंड बाय द सिमेट्री ऑफ द पैराबोला, अब मुझे पता है कि इस पैराबोला की जो मिनिमम वैल्यू है वो 500 पे आती है, तो मुझे पता है कि ऑब्वियसली सिंस पैराबोला इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस इट्स गोइंग टू बी सिमेट्रिक. 500 पे इसकी मिनिमम, x इक्वल्स 500 पे इसकी वेट y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, राइट. और मुझे पता है कि x इक्वल्स 500 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आती है वट एवर दैट मे बी, राइट. सो मुझे पता है कि ऑब्वियसली अब मैं 500 से कितना भी दूर चले जाऊं राइट हैंड साइड पे, 500 से अगर मैं राइट हैंड साइड पे जितना दूर जा सकता हूं उतना दूर जाऊंगा तो मुझे उतनी बड़ी वैल्यू मिलती रहेगी. ठीक है, 500 से मुझे पता है कि चाहे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊं या राइट हैंड साइड पे जाऊं, मैं जितना दूर जा सकता हूं उतना मैं दूर जाना चाहूंगा टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, राइट. अब मुझे पता है कि मैं लिमिटेड हूं इस इंटरवल से 10,1000 से, तो मुझे पता है कि 10 और 1000 पे मुझे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज मिल सकती है, बट मुझे पता है कि 1000 जो है वो ज़्यादा दूर है 500 से एज कंपेयर टू 10. सो ऑब्वियसली मुझे 1000 पे g डैश x की 1000 पे मेरे को इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है ओवर इन दिस इंटरवल मुझे 1000 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है. हेंस log 10 ऑफ दिस पॉलिनोमियल की भी मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट पे 1000 पे. सो basically your g dash x has maximum possible slope at 1000 and minimum possible slope at x equals 500. ठीक है. Now the last question says find the limit ln of x over g of x if it exists. So you want to find this limit if it exists. Now we know that both ln of x and g of x go to infinity as x go to infinity. But our claim is that a denominator dominates here.
Why? You can just look at L'Hopital's here. So when you by since they both go to infinity as x goes to infinity, we first apply L'Hopital's rule, and we get this 1 by x over g dash of x, which is, and 1 by x as x goes to infinity, obviously this part goes to 0. This part goes to 0 as x goes to infinity. And what about g dash x? Now remember that g dash x का मुझे पता है, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तुम जितना 500 से दूर जा सकते हो, तुम जितना 500 से दूर जाओगे उतना तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू आगे बढ़ता रहेगा. ठीक है. g dash x इवन तो वो मुझे पता है कि log 10 of this polynomial है, x squared minus 1000 whatever it was, x squared minus 1000 x plus 10 to the power 1000. मुझे पता है कि 500 से मैं जितना दूर जाता रहूंगा उतनी मेरी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बढ़ती रहेगी, राइट. एंड ऑब्वियसली इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है. सो log 10 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इन्फिनिटी तक जाएगा एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी. सो मुझे पता है कि डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, सॉरी न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. तो ऑब्वियसली द लिमिट इज जस्ट गोना गो टू 0, राइट. सो लिमिट इज नथिंग बट 0 of ln of x over g of x as x goes to infinity, right? All right, so the last part was very easy. All right, so B3 says for non-negative numbers a comma b comma c and any positive real number r, you need to prove the following inequality and state precisely when the equality is achieved. ठीक है. So this is what we wanna do. We need to prove this inequality and हमें ये भी बताना है कि exactly कब हमें equality मिलेगी, right? So now it's a hint that's given to us. सबसे पहले तो without loss of generality assume कर लो कि a less than b, a greater than equal to b is greater than equal to c, और सिर्फ पहले दो टर्म्स पे काम करो. ठीक है. What about the third term? What if the assumption is not true? ठीक है. तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये, हम इस हिंट को फॉलो करते हैं. ठीक है. सिर्फ पहले दो टर्म से डील करते हैं बाय, एंड वी अज्यूम करते हैं कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी a greater than equal to b is greater than equal to c. बेसिकली हर एक टर्म सिमेट्रिक है इन द सेंस दैट यहाँ पर a पहले आ रहा है, उसके बाद b और c आ रहा है, तो बेसिकली हर टर्म के बाद बाकी दो टर्म्स आते हैं. आई थिंक विदाउट yes. So without loss of generality thing is applicable here. So you can indeed assume without loss of generality that a is greater than equal to b is greater than equal to c. So since we can assume that, because inequality is completely symmetric in a comma b comma c, right? A to the power r times a minus b times a minus c plus b to the power r times b minus a times b minus c plus c to the power r times c minus a times c minus b. And this is greater than equal to 0. This is what we need to prove. And we have an assumption that a greater than equal to b is greater than equal to c. Right? Now, what was the hint? That only work with the first two terms. So यहाँ पर हम अभी के लिए इस टर्म को इग्नोर कर देंगे, एंड जस्ट सो यू नो दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो अगर हम इसको इग्नोर करके प्रूव कर भी देते हैं तो हमारा काम एक्चुअली में फिर भी मतलब बेटर तरीके से ही हो जाएगा. लाइक इट्स एक्चुअली अ वीकर थिंग. हम मतलब बेसिकली ये इट माइट बी दैट ये इन दोनों का सम नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव करके पॉजिटिव करे, बट हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं लास्ट टर्म को, और हमें पता है ये पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. नेगेटिव होती तो मे भी इग्नोर ना कर पाते कि भाई वो नेगेटिव है तो वो कुछ काउंट कर सकता है वैल्यू को. वो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो अभी के लिए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है. नाउ वी ओनली लुक एट दीज टू. इसमें हम क्या करेंगे, a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे और ये अंदर आ जाएगा a टू द पावर r टाइम्स a माइनस सी माइनस b टू द पावर r टाइम्स b माइनस सी. नाउ इसको ध्यान से देखो. a टू द पावर r मुझे पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू b टू द पावर r है, और a माइनस सी ऑब्वियसली विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस सी अगेन बिकॉज a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, और ये भी दिस इज ट्रू अगेन बिकॉज r मुझे पता है पॉजिटिव इंटीजर है और a मुझे पता है ग्रेटर देन इक्वल टू b है, इसलिए ये इनइक्वालिटी भी ट्रू होती है. r इज अ पॉजिटिव रियल नंबर. सो अब ये ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों चीजें ट्रू हैं, इसलिए मुझे पता है कि ये वाला पार्ट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और a माइनस बी तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही. ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पूरी की पूरी चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियसली इनका सम भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. राइट. सो हमने क्लियर बहुत इजीली प्रूव कर दिया कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है. अब ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी कब होगी? सारी जो हमने इनइक्वालिटीज को यूज किया ना, जो हमने छोटी छोटी इनइक्वालिटीज को यूज किया, इनको वापस देखते हैं. एक तो जब a b के इक्वल हो जाएगा, देखो मुझे पता है कि ये मुझे एग्जैक्टली 0 के इक्वल कब मिलेगा, ये मुझे एग्जैक्टली 0 के इक्वल कब मिलेगा, या तो जब a b के इक्वल होगा और
a टू द पावर r b टू द पावर r के इक्वल होगा और a माइनस सी b माइनस सी के इक्वल होगा, राइट। तो या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर ये दोनों कंडीशंस साथ में ट्रू हो जाए, बट ये सब की सब एक ही चीज कह रही हैं कि a b के इक्वल चाहिए, ठीक है। ये सब की सब एक ही चीज कह रही हैं कि a जो है हमें b के इक्वल चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज इफ यू लुक एट दिस वेरी केयरफुली, मेरे a और b जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए आई कैन मेक दैट क्लेम। यहाँ पर तो बहुत ईजी है, यू कैन टेक इट एज अ स्मॉल एक्सरसाइज इफ यू वांट, बट ये तीनों एक ही चीज कह रही है कि हमें a इक्वल्स b चाहिए। तो यहां से हमें a इक्वल्स b चाहिए और इसको जीरो होने के लिए या तो c जीरो हो जाए, राइट, इसको जीरो होने के लिए या तो c जीरो हो जाए या फिर c a के इक्वल हो जाए या फिर c b के इक्वल हो जाए। तो इनमें से कोई एक चीज ट्रू हो जाए, ठीक है। ये और तो मैं चाहता हूं या तो c जो है वो a के इक्वल हो जाए या 0 के इक्वल हो जाए या b के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। या तो c a के इक्वल हो जाए या वो b के इक्वल हो जाए या वो a के इक्वल हो जाए या b के इक्वल 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो c should either be equal to 0 or it should be equal to a or it should be equal to b. Now obviously अगर c a के इक्वल हो जाएगा that means a b c तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, राइट। अगर c b के इक्वल हो जाएगा तो मुझे समथिंग लाइक ये मिलेगा a b b, बिकॉज यू नो ये चीज। और अगर c जी तो बेसिकली या तो मुझे a का फॉर्म का सोल्यूशन मिलेगा या मुझे a b के फॉर्म का सोल्यूशन मिलेगा या फिर मुझे a b 0 के फॉर्म का सोल्यूशन मिलेगा, राइट, वेयर a and b आर रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो लेट्स वेरीफाई। सो सी वी गेट इक्वालिटी प्रिसाइसली व्हेन a b c is 0 or when one of them is 0 and the other two are equal. So when one of them is 0 and other two are equal. So या तो तीनों हो जाएं same a equals b equals c, या when two of them are equal and one of them is 0. So a equals b, so when a equals b and c equals 0 और c equals a और c equals b. a तो मुझे पता है b के इक्वल है ही हमेशा, तो या तो अगर c a और b किसी के भी इक्वल होगा तो ऑब्वियसली मतलब a और b और c तीनों इक्वल हो जाएंगे, और अगर c 0 होगा तो बेसिकली a और b इक्वल हो जाएंगे और c 0 हो जाएगा। सो अरे यहाँ पर हमने एक्चुअली सब मिस्टेक कर दिया। मैंने ये जो बोला ना कि a b ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज अरे हमें पता है कि हमने क्या बोला कि या तो एक तो हमें कंडीशन चाहिए कि a b के इक्वल है, इन दोनों से मुझे मिलता है, इन दोनों के बीच में और था, यहां से मुझे मिल रहा है कि a b के इक्वल है और यहां से मुझे मिल रहा है कि, और ये इसके साथ एंड में है, ये कंडीशन इसके साथ एंड में है। ये जो कंडीशन है ना कि या तो c 0 के इक्वल है या फिर c a के इक्वल है या फिर c b के इक्वल है, अगर इस पार्ट को 0 होना है तो ये इसके साथ तो एंड में है ना, राइट, इसके साथ तो ये एंड में है, क्योंकि ये 0 होने के लिए इतने पार्ट को 0 होने के लिए इतने पार्ट को 0 होने के लिए इतने पार्ट को इतने पार्ट को 0 होने के लिए ये कंडीशन है, ठीक है, और इतने पार्ट को 0 होने के लिए ये कंडीशन है कि या तो c 0 हो या c a के इक्वल हो या c b के इक्वल हो। अब c अगर a या b किसी के भी इक्वल हो जाएगा तो बेसिकली तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे। सो आइदर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, और अगर c 0 के इक्वल हो जाएगा तो मुझे पता है कि बाकी तो a और b एक दूसरे के इक्वल है ही, तो बेसिकली a, 0। सो द टू कंडीशंस दैट वी हैव कि या तो तीनों के तीनों इक्वल है, a इज इक्वल टू b इक्वल c और a इक्वल्स b एंड c इज 0। सो बाय सिमेट्री व्हाट डू वी गेट, हमने क्या असम्पशन करी थी कि a ग्रेटर इक्वल टू b इज ग्रेटर इक्वल टू c। अब हम ऑब्वियसली इस असम्पशन को रिमूव कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेंगे, सेट ऑफ सॉल्यूशंस फॉर इक्वालिटी की या तो तीनों के तीनों इक्वल है या फिर कोई भी उनमें से दो जो है वो इक्वल है एक दूसरे के और तीसरा वाला 0 के इक्वल है, ठीक है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द सॉल्यूशन सेज। ऑलराइट, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर B आस्क्स अस, yeah, so part number B says, as a special case, obtain an inequality with a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 plus abc times a plus b plus c on one side. So I'll give, this is a very easy one, just substitute r to be equal to 2.
जब आर को 2 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना तो तुम थोड़ी सी अलजबरा करोगे तो तुम्हें ये इनइक्वालिटी मिल जाएगी. आई वोंट बी डूइंग दिस इज जस्ट आर को 2 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करने और बेसिक अलजब्राइक मैनिपुलेशन करनी है ताकि ये एक साइड पे आ जाओ, बाकी का जो बचा है वो तो तुम दूसरी साइड पे ले जाओगे. ठीक है. नाउ यू हैव टू शो दैट इफ ABC इज इक्वल्स टू 1 for positive numbers ABC, अगर if ABC is equals to 1 for positive numbers ABC, then you want that ये inequality true हो. अगेन यहां तुम R को वापस 2 के इक्वल लोगे, तुम R को वापस 2 के इक्वल लोगे. ठीक है. जो तुमने B पार्ट से यहां पर इनइक्वालिटी, अब देखो तुम अगर ध्यान से देखो ना, ये इनइक्वालिटी को ध्यान से देखो जो तुमने B पार्ट में निकाली थी. ठीक है. जब तुम R को, अब तुम्हारे पास क्या एक चीज है कि ABC तुम्हारा 1 के इक्वल है, तो तुम दोनों साइड्स को ABC से डिवाइड कर दोगे. ठीक है. ABC तुम्हारा 1 के इक्वल है, रिमेंबर दैट ABC 1 के इक्वल है. तो यहां तो तुमने बेसिकली ABC को हटा दिया. ठीक है. तो ये क्या हुआ, a to the power 4 प्लस b to the power 4 प्लस c to the power 4 प्लस ABC, बिकॉज ये ABC मुझे पता है 1 के इक्वल है, तो ये तो वैसे हट जाएगा. यहाँ मुझे पता है नीचे आ जाएगा इसके C आ जाएगा, इसके आ जाएगा A, इसके आ जाएगा C स्क्वायर प्लस इसके नीचे B आ जाएगा, बिकॉज मैंने यहाँ भी ABC से डिवाइड किया है और यहाँ भी मैंने ABC से डिवाइड किया है. ठीक है. दोनों साइड पे मैं ABC से डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है. और मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि ABC 1 के इक्वल है, तो डजंट रियली मेक अ डिफरेंस टू मोस्ट ऑफ द टर्म्स. राइट. सो मुझे ये मिल जाएगा. अब मुझे एक और चीज क्या पता है, अब देखो यहाँ पर मैंने नियरली साइड टर्म्स लेके आ गया हूँ, बट एक टर्म मुझे और चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब. नाउ यू नो दैट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो होता है बाय AMGM इनइक्वालिटी, ये मुझे पता है किस चीज के साथ ग्रेटर देन इक्वल है. बाय AMGM ये मुझे पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ABC है. राइट. सो जब मैं इस साइड पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ऐड करूंगा, उस साइड पे मैं 3ABC ऐड कर सकता हूं, बिकॉज मुझे पता है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, बट 3ABC मुझे पता है 3 के इक्वल हो जाएगा. सो हेंस यू विल गेट द इनइक्वालिटी दैट यू वांटेड. ठीक है. यहाँ तुम बेसिकली, हाँ, इस टाइम पे तुम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c का ऐड कर दोगे, यहाँ तुम 3ABC ऐड कर दोगे, ABC 1 के इक्वल है, तो बेसिकली तुमने 3 ऐड किया एंड यू विल गेट दिस होल इनइक्वालिटी. ठीक है. ऑलराइट. नाउ क्वेश्चन नंबर B4. क्वेश्चन नंबर B4 क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वेयर इट इज रिक्वायर्ड दैट x, k, y, n आर पॉजिटिव इंटीजर्स with the exponents k and n both 1 greater than 1. सॉरी. तो तुम चाहते हो कि तुम्हें इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिले, और एक और कंडीशन क्या है कि k और n जो है वो ग्रेटर देन 1 है. ठीक है. इसमें तुम क्या करोगे, इसमें तुम एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हो. पहले तुम देखो 20a x टू द पावर k को तुम ले लो a, इसको तुम ले लो b, a और b तुम्हारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए. 20a प्लस 24b इक्वल्स 2024 के कितने पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस हैं. ठीक है. जब तुम 20a प्लस 2024b करोगे, तुम इसके कितने पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस हैं तुम ये निकालोगे. ठीक है. और तुम्हें एग्जैक्टली कितने मिलेंगे मैं तुम्हें बताता हूं. देखो, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है जो तुम्हें अप्लाई करनी है. पहले तो तुम्हें एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि अगर तुम्हारा a, b एक सोल्यूशन है, तो तुम्हारा a माइनस 6k और b प्लस 5k एक सोल्यूशन और होगा. ठीक है. अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, ये बहुत ही इजी है प्रूव करना कि, बिकॉज आई मीन 24 इंटू 5 20 इंटू 6 के इक्वल होता है. राइट. 24 इंटू 5 20 इंटू 6 के इक्वल होता है. तो ऑब्वियसली जब तुम 20 इंटू 6 इंटू के को माइनस के पे लेके आओगे और 24 इंटू 5 इंटू के को प्लस पे लेके आओगे, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो उससे तुम्हें ये मिलेगा कि बेसिकली तुमने कुछ चेंज नहीं किया. गिवन दैट a, b एक ऑलरेडी सोल्यूशन है, तुम और सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हो बाय हैविंग दिस एंड k तुम्हारा इंटीजर है ऑब्वियसली. राइट. तुम्हें बेसिकली एक सोल्यूशन से बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं. और मैं ये भी कह रहा हूं, वन मोर क्लेम आई एम मेकिंग इज कि अगर तुम्हारे पास एक सोल्यूशन ऑलरेडी है, ठीक है, अगर तुम्हारा बेसिकली पहले तो हमने बोला कि अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है तो उससे मुझे एक और सोल्यूशन इस प्रोसेस के थ्रू मिल जाएगा. राइट. अब मैं एक और क्लेम कर रहा हूं कि अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है और मेरे को एक और सोल्यूशन दिया हुआ है, अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है a, b और मुझे एक और सोल्यूशन दिया हुआ है a डैश, b डैश, तो ये a डैश b डैश जो है ना, ये a, b के थ्रू इसी प्रोसेस से आया होगा. ठीक है. तो मैं बेसिकली बोल रहा हूं कि दिस डिफाइंस द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस फॉर मी गिवन दैट आई हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन.
पहले मैंने बोला कि इस प्रोसेस के थ्रू a माइनस 6k b प्लस 5k अगर मैं करूँगा फॉर ओवर ऑल द इंटीजर्स मैं करूँ, अगर मैं k को कोई भी k को मैं थ्रू आउट माई इंटीजर्स ले लूँ एंड इस चीज़ को मैं प्लग इन करूँ, तो बेसिकली दिस गिव्स मी ऑल ऑफ माई इंटीजर सॉल्यूशंस टू this gives me a set of integer solutions to this equation, right? This gives me a set of integer solutions to this equation, sorry. मेरे को इस equation के एक set of integer solutions मिल रहे हैं इस set के थ्रू, ठीक है, given that I have one solution a, b. बट मैं एक और चीज बोल रहा हूँ कि अगर अगेन मेरे पास एक सोल्यूशन मुझे गिवन है कि भाई इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है मेरे पास, और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई भी दूसरा सोल्यूशन तुम ले दो इस दुनिया का, a डैश कॉमा b डैश जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो एक्चुअली a डैश कॉमा b डैश इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू a माइनस 6k टाइम्स b प्लस 5k फॉर सम k. So basically this defines the set of all the solutions, all the integer solutions to this equation 20a plus 24b equals 2024. ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो कि कोई भी एक सोल्यूशन ले लो, 100 जैसे 100 से शुरू कर लो, तो 100 अगर मैं यहाँ पर ले लूँगा तो मेरा b की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट. अब ऑब्वियसली मैं 100 से a को, अगर मैं a को 100 से ऊपर कुछ भी रखूँगा तो b नेगेटिव हो जाएगा. एंड आई वांट अ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस टू दिस. मुझे इस केस में पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस चाहिए, राइट. a कॉमा b मुझे पॉजिटिव चाहिए, राइट. तो मुझे पता है कि 100 b को, अगर मैं b को ऑब्वियसली द लीस्ट वैल्यू ऑफ एट b आई कैन टेक इज 1, तो a की वैल्यू इस केस में 100 हो जाएगी. और अगर मैं a की वैल्यू 1 रखूंगा, a की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो b की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 4. सो a की मिनिमम वैल्यू आई कैन टेक टू बी इक्वल टू 4 एंड उस केस में मेरे को b की वैल्यू 81 मिल जाएगी. ठीक है, तो 100 से लेकर 4 तक मैं 100 से लेकर 4, right. So 100,1 is my first solution and 4,81 is my last solution, and you can very easily verify that जो 100,1 के बाद जो next solution होगा ना वो 96, so next solution क्या होगा 100 minus 6 which is 94, 1 plus 5 which is 6, right. ये होगा ना नेक्स्ट सोल्यूशन. तो 100 से 100,1 से फिर 94,6 से आएंगे, फिर 94 में एक और बार तुम 6 माइनस करोगे तो 86,11 आएगा तुम्हारे पास. तो बेसिकली तुम्हें ऑल इन ऑल 17 सोल्यूशंस मिलेंगे. ठीक है, 17 सोल्यूशंस मिलेंगे तुम्हें ऑल इन ऑल. तुम्हें 100,1 से लेकर ये 4,81 तक 17 सोल्यूशंस मिलेंगे. और उसमें तुम एक्चुअली अब तुम्हें क्या नोट करना है, देखो तुम्हें ये 17 पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशंस मिले हैं, बट इफ़ यू रिमेंबर तुम्हारा मेन पर्पस क्या है कि तुम्हारे जो ये a कॉमा b है ये बेसिकली कुछ परफेक्ट पावर्स भी बन सके, राइट. मैं चाहता हूँ कि ये a कॉमा b कुछ x कॉमा k कॉमा y कॉमा n के फॉर्म के हों वेयर k and n आर बोथ ग्रेटर देन 1. सो दे आर बेसिकली नॉन ट्रिवियल पावर्स एज वेल. अब 100,1 तो डज वर्क बिकॉज 1 इज ऑब्वियसली अ पावर ऑफ 1 टू एनीथिंग एंड 100 इज जस्ट 10 स्क्वायर्ड. एंड सिमिलरली अगर मैं 4,81 तक, I know I have 17 solutions that go from 100,1 to 4,81. Again 4,81 also works because 4 is 2 squared and 81 is 3 cubed, 3 to the power 4, sorry. But out of these 17 solutions, only these two are actually the ones that are going to be non-trivial powers of some positive integers. बीच में तुम्हारे पास जो भी एंट्रीज आएंगी उसमें आई नो इट साउंड्स लाइक अ लॉट की 17 सॉल्यूशंस में से 2 हैं, बट इफ यू नो अगर तुम उसके 17 अगर तुम इसका यहाँ पर फॉर्म देखो ना a माइनस 6k b प्लस 5k, तो तुम इस फॉर्म में जितने भी बीच में नंबर्स हैं ना उन सबको तुम बहुत ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो. यू कैन टेक इट एज अ शॉर्ट एक्सरसाइज कि व्हाई दिस फॉर्म हेल्प्स अस एलिमिनेट ऑल द सॉल्यूशंस इन बिटवीन ऑफ दीज टू. ठीक है, हाँ, ये वाले फॉर्म से जो हमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं 17 सॉल्यूशंस, व्हाई इज इट दैट वी कैन एलिमिनेट ऑल द 15 सॉल्यूशंस, 15 पेयर्स इन बिटवीन. यू कैन टेक इट एज अ स्मॉल एक्सरसाइज और अ स्मॉल यस एक्सरसाइज फॉर योरसेल्फ. बट ये मेन पॉइंट भी कि इन 17 में से सिर्फ ये 2 सॉल्यूशंस हैं जो एक पॉजिटिव इंटीजर की नॉन ट्रिवियल फॉर्म के फॉर्म में आ सकते हैं, एंड हेंस दीज टू आर द ओनली सॉल्यूशंस. ओके.